Assalamu alaikum, dear student of class 6. I hope that you are all very well. Now today's our work is to solve the exercises. To solve the exercises of lesson 12. Lesson 12. First of all, are you ready? Yes? Okay. So now open your textbook and page number 65. Shabash, page number 65. Lesson 12. Exercises of lesson 12. First exercise, comprehension and vocabulary. Comprehension and vocabulary. First, I have already tell you comprehension means samjh, akul, understanding, and vocabulary is zakhiro, right? So now exercise number A, answer these questions with simple sentences. Answer these questions with simple sentences. You will find that you can use the kinds of sentences we have already practiced. Okay, now first question number first, what kind of morning was? What kind of morning was it when Jenny left guest head? One cold morning in January. One cold morning in January. Now number second, was it light or dark when the coach stopped? मीन्स जॾहिं कोच बीठी छा उते ऊंधाई हुई या रोशनी हुई? What better? No. Okay. Lights shone from some of them. Lights shone from some of them. Write two sentences about the house. It was a very large house. It was many windows. Was Jenny tired? Yes or no? Yes. Yes, she was. Yeah, yes, she was tired. Number 5. How many girls were there in the large room? 80 girls were there in the large room. 80 girls were in the large room. Now number 6. How many tables were there? There were 4 long tables. Okay, there were 4 long tables. What did Jenny sit on? What did Jenny sit on? She sat on a bench near the door. She sat on a bench near the door. What was on the trays? Small pieces of oat cake and mug of water were on the trays. What was in the mugs? Water. Number 10. Write 2 sentences describing the bedroom. The bedroom was very long. The bedroom was very long. And second, there was a row of beds placed very close together. Okay, first sentence, the bedroom was very long. Second, there was a row of beds placed very together. Okay, number 11. How many girls were there in each bed? There were 2 girls in each bed. Number 12. What happened in the morning after the girls had dressed? They had prayers of a Bible lesson. What was in the basins on the tables next morning? Basins of porridge. What was the weather like? The weather was very cold. Okay. Page number 66. Exercise number B. Find these words in your dictionary. Coach, buggy, frock, apron, put a mathi skirt, monitor, porridge, put a porridge javan. Number 6. Learn these phrases and then finish the sentences below. Make a journey, put someone to bed, do your homework, hand around something, take off your clothes, put on your clothes, share something with someone, say your prayers.
नाउ व्हेन वी ट्रेवल वी पुट जॾहिं असां सफ़र कयूं था त छा था कयूं वी मेक अ जर्नी वी मेक अ जर्नी वी मेक अ जर्नी नाउ नंबर सेकंड व्हेन अ लिटिल गर्ल इज टायर्ड हर मदर put someone to bed put someone to bed after school we do your homework. Number 4 when we have guests we hand around drinks. When we undress we take off your clothes. When we dress we put on your clothes. Miss Miller share her bed with Jenny. Number 8 before breakfast the girls say your prayers. Okay, now these are tables. You will read yourself. Now page number 67. Put written exercise. Write sentences saying what happened at the time given. हिनखे सम्झण लाइ पुट तव्हांखे टेंस जी ज़रूरत आहे. हाणे ॾिसो पुट yesterday means काल means गुज़िरियल टाइम. now okay look at the board. शाबाश. past tense. Okay, past indefinite means जंहिंमें कंफर्म पक न हुजे पुट. डेफिनाइट मीन्स पक श्योरिटी. इंडेफिनाइट माना अनश्योरिटी. टेंस ओके टेंस taken Latin word tempus means time. Okay, now put a tense taken from Latin word tempus means time. put a tenses में असांखे वक्त जी ख़बर पवंदी आहे त कहिड़े वक़्त माना हिन सेंटेंस में हिन न्यूज़पेपर में हिन कहिड़ी शइ में कहिड़े टाइम जी ॻाल्हि ॿुधाई वई आहे लिखी वई आहे या चई वई आहे. ठीकु आहे पुट. पर उन सां गॾोगॾु टाइम सां गॾोगॾु असांखे कम जी बि ख़बर पवंदी आहे त कमु कहिड़ो करे माना थी रहियो आहे थी वियो आहे या थिए थो पियो. राइट पुट. सो नाउ पास्ट टेंस when a verb points to an action. Definition. Point to an action that done in the past time. That was done in the past time. It is said to be the past tense. It is said to be the past tense. ओके पुट अहिड़े ॾिसो हमेशह असांजी नेचुरली आदत आहे फितरत आहे ह्यूमन बींग जी त असां इहो ई चवंदा असां हीअं कयो असां हूअं कयो असां फलाण कयो टीर कयो मटीर
एक्स वाई जेड पुट जेके असां शयूं ॿुधाईंदा आहियूं असां पास्ट जो ॿुधाईंदा आहियूं तक़रीबन ऑलमोस्ट पुट। हाणे ॾिसो उन्हनि में छा हूंदी आहे असांखे पक न हूंदी आहे माना मां हीअं कयो आहे उहो कमु असां पास्ट वारो अॼु था ॿुधायूं ठीकु आहे केतिरो कयो ख़बर न आहे। जेका शइ असां हिन टाइम काल जी पुट गुज़िरियल ॻाल्हि जेका असां अॼु था कयूं मीन्स उन मां ख़बर पइजी वेंदी आहे त हीअ कमु जीअं मिसाल मां वयुसि आयुसि पढ़ियुसि लिखियुसि खाधमि पीतमि इहे शयूं पुट। हाणे ॾिसो डेफिनेशन थी वई पुट। एग्ज़ाम्पल ate, drank, went, many more examples. Now helping verbs, only did. Okay, did we use all nouns are pronouns also. Okay, now beta in assertive sentence we use second form of verb or affirmative or assertive sentence. In affirmative sentences we use second form of verb. पुट verb जा केतिरा फॉर्म हूंदा? टे। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हिकु शइ पुट ज़हन में रखो ॾिसो फर्स्ट ऐं थर्ड ऑलमोस्ट इंग्लिश में इलाही जाइ ते यूज़ थो थिए पुट पर वाहिद जेका पुट सेकेंड फॉर्म हूंदो आहे न इहो ओनली छा में यूज़ थींदो आहे पुट पूरी इंग्लिश में ओनली यूज़ पास्ट टेंस। हिननि खे पुट रटण जी ॻाल्हि न आहे बाबा सिर्फ़ु यादि रखिणो आहे त ॾिसो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब असां प्रेजेंट टेंस में यूज़ कंदा आहियूं प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ कंदा आहियूं पुट फ्यूचर में यूज़ कंदा आहियूं वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म ठीकु आहे पुट सिर्फ़ु हिनखे यादि करे छॾिणो आहे ज़हन में विझी छॾिणो आहे पुट माइंड में रखी छॾिणो आहे त जेको वर्ब जो सेकेंड फॉर्म हूंदो आहे पुट कम जो सेकेंड फॉर्म उहो पूरी इंग्लिश में पूरी ग्रामर में असां छा में आणंदा आहियूं पास्ट टेंस जे जुमलनि में ठीकु आहे पुट। अगरि तव्हां को बुक था पढ़ो का स्टोरी था पढ़ो स्टोरी मीन्स पास्ट टेंस कॉमन आहे या का न्यूज़पेपर था पढ़ो उन में तव्हां पढ़ियो त ॾिसो त हिन में वर्ब सेकेंड फॉर्म आहे त पक ॼाण उहो टेंस कहिड़ो हूंदो आहे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस राइट पुट ठीकु आहे अची वियो सम्झे सिर्फ़ु हिनखे रटण जी ॻाल्हि ज़रूरत न आहे पुट सिर्फ़ु मेमोराइज़ यादि करण जी ज़रूरत आहे। सो नाउ इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस वी यूज़ a negative and a sentences use first form of verb means second form change into
राइट बेटा ज़हन में करे छॾिणो आहे जॾहिं असां पास्ट टेंस जे सेंटेंसिस खे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव कंदा आहियूं त जेको असांजी फर्स्ट फॉर्म हूंदी आहे सेकेंड फॉर्म हूंदी आहे उहो छा में चेंज थींदी आहे फर्स्ट फॉर्म में इहा बि ज़हन में रखें कॾहिं बि किथे बि इहो रूल चेंज न आहे थियणो पुटु ग्रामेटिकली रूल आहे पुटु असां इन अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब जी कहिड़ी फॉर्म यूज़ कंदा आहियूं इन पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म पर जॾहिं असां पास्ट टेंस जे सेंटेंस खे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव कंदा आहियूं फर्स्ट फॉर्म छा में चेंज थी वेंदी आहे सेकेंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म ओके बेटा नाउ स्ट्रक्चर ऑफ sentences. First of all, we write subject plus second form main verb and last object. Okay, means beta उन्हनि अंब खाधो कॾहिं खाधनि ख़बर न आहे पर ॻाल्हि छा जी पुट पास जी उन्हनि खे असां इंग्लिश में छा चवंदा आहिनि हिन में सब्जेक्ट इन विच सब्जेक्ट इन द सेंटेंस उन्हनि मीन्स सब्जेक्ट वी राइट दे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विच वर्ब इन द सेंटेंस खाधो खाइण खे छा चइबो आहे ईट त ईट जो सेकेंड फॉर्म छा आहे पुट एट दे एट हिन में ऑब्जेक्ट कहिड़ो आहे पुट अंब जो अंब खाधो अथनि पुट उन्हनि अंब खाधो अंब उन्हनि खे न आहे खाधो सो ऑब्जेक्ट छा आहे पुट मैंगो दे ईट उन्हनि अंब दे एट मैंगोज ओके बेटा या अदर sentences ही हुन सां मिलियो या मुंहिंजी अम्मीअ मूंखे सॾियो ठीकु आहे इन द विच सब्जेक्ट इन द सेंटेंस मुंहिंजी अम्मी माय मदर सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सॾियो माय मदर सॾण खे पुट called my mother called me मुंहिंजी मां मूंखे सॾियो राइट बेटा सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसिस ओके जीअं उन्हनि अंब न खाधा ओके उन्हनि दे सॉरी फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पुट मां ये ॻाल्हि करे चुकी आहियां, जॾहिं पास्ट टेंस जे सेंटेंस खे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव कंदो उन में असां हेल्पिंग वर्ब हणंदासीं ऐं सेकेंड फॉर्म चेंज इन टू फर्स्ट फॉर्म। सो दे हेल्पिंग वर्ब डिड, दे डिड नॉट eat mangoes. Okay बाबा, now इंट्रोगेटिव करण लाइ फर्स्ट ओके। सो पुट इंट्रोगेटिव करण लाइ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी राइट हेल्पिंग वर्ब। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कीअं हाणे छा उन्हनि अंब न खाधा? डिड दे नॉट ईट मैंगोस। सिंपल बाबा। फिर ध्यान ॾियो पुट, पास्ट टेंस जो मतलब फेल जो उहा हालत उहा कंडीशन जेका असांखे ॿुधाए त फाइल या जेको असां कमु ॿुधाए रहिया आहियूं उहो कमु गुज़िरियल टाइम में कयो वियो। ठीकु आहे। उन असर्टिव सेंटेंस में पुट असां वर्ब जो फॉर्म यूज़ कंदा आहियूं सेकेंड। कहिड़ो फॉर्म यूज़ कंदा आहियूं? सेकेंड। उन खां पोइ जॾहिं पुट असां ऐं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट ऑब्जेक्ट एंड मेनी मोर आइटम्स। बट इंट्रोगेटिव या नेगेटिव फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस first second form change into first form and lastly object. Right, very simple. So now beta page number 67. Yesterday I fell off my bicycle. Yesterday put in the sentence make करनो आहे, ठाहिणो आहे. So 20 words and you this exercise you will solve yourself because very simple. तव्हांखे टेंस सेखारे चुकी आहियां पुट। पास्ट टेंस जी ॻाल्हि आहे। पास्ट टेंस में तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं हेल्पिंग वर्ब यूज़ कंदव त फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में अची वेंदी। नाउ यस्टरडे आई फेल ऑफ माई बाइसाइकिल। यस्टरडे ॿियो जुमिलो ठाहे था सघोसि पुट। I went to my uncle's home yesterday. मां वयुसि पंहिंजे चाचे जे घर काल्ह। लास्ट ईयर गुज़िरियल साल पुट जेको गुज़री वियो आहे चए थो माई फ्रेंड वॉन दी 100 yards रेस लास्ट ईयर। तव्हां लिखी तव्हां चए था माई फ्रेंड वॉन दी मैच लास्ट ईयर। ओके। 2 days अगो माना 2 ॾींहं पहिरियां। हाणे 2 ॾींहंनि खां पहिरियां कहिड़ो वाक़ियो तव्हां सां हैपन थियो आहे? कहिड़ी ॻाल्हि तव्हां सां हैपन थी आहे उहा लिखी था सघो। I bought a beautiful clothes 2 days ago. मां ख़ूबसूरत कपिड़ा ख़रीद कया 2 ॾींहं पहिरियां। लास्ट वीक गुज़िरियल हफ़्तो। You will sentence you will make yourself. Now write answer to these questions. When did you last brush your teeth? means तव्हां पंहिंजा माना आख़िरी दफ़ो ॾंद कॾहिं साफ़ कया, टूथ ब्रश कॾहिं कयो तव्हां पाण लिखी था सघो पुट। In the morning. Okay. When did you first go to school? पहिरियों दफ़ो तव्हां कॾहिं स्कूल विया हो? ठीकु आहे। When do you have your breakfast? Oh, very simple beta. You will solve yourself. Now page number 68. The time. 12 AM यानी 12 ओ कलाक। 12 AM यानी छा चई था सघो हिनखे? टाइम 12 ओ
कलाक, ठीक आहे, पर एम आहे पुट छा आहे, AM मिडनाइट, राइट बेटा। अगर PM हुजे हा त नून 12 PM या 12 ओ कलाक मिडी या पुट नून, ओके, डे एंड नाइट, राइट बेटा। सो 12 ओ कलाक मिडनाइट, 12 PM यानी मिडी या नून 12:05 पुट चना टाइम घणो थियो आहे, व्हाट इज टाइम या टाइम केतिरो थियो आहे, राइट, लिखियल आहे 12:05, 12:05 छा आहे पुट, ठीक आहे बाबा, 12:05 PM हुजे या AM हुजे जेको बि हुजे, 5:12 माना 5:12, 12 थी विया आहिनि, 12 घणा मिंट थिया आहिनि, 5, 5:12, 5:12, राइट बेटा, या 12:05 यहीं चनाओ, टाइम घणो थियो आहे, 12:05, 12:05 या 12:05, ओके। नाउ पूरो 12 थिया आहिनि, 12 कलाक, हिकु थियो आहे, 1 कलाक, 2 थिया आहिनि, 2 कलाक, मेनी मोर। नाउ 1:15, 15 खे पुट 15:15 चवंदा हुयो, 1:15 यानी कलाक जो चौथों हिस्सो, चौथे हिस्से खे असां मैथमेटिकली छा चवंदा आहियूं, क्वार्टर, ओके। सो 1:15, a quarter past 1 या 1:15 या चवंदा टाइम घणो थियो बेटा, 1:15 या क्वार्टर पास्ट 1, 1:20, 20 past 1, 1:20 मिनट, 20 past 1 या 1:20, 25 past 2, very simple। and exercise page number 69, write these times in words, give 2 ways is possible। थियो आहे हिकु कीअं ॿुधाईंदो इंग्लिश में, 1 कलाक, 3:15, 3:15, a quarter past 3, a quarter past 3 या 3:15, ओके, 6:30, ओके पुट, 6:30 या 6:30, very simple। So beta, once again I will repeat past tense, when a verb point to an action that was done in past time is said to be the past tense. Such a form of verb shows that subject did work in past time, that is called past tense। Helping verb of past tense only did, and did we use all noun, pronoun, singular and plurals। Now in an affirmative sentence we use second form of verb, okay। Now change into interrogative or negative, so we use first form change into negative। And the structure of affirmative sentence, first of all subject plus second form of main verb and the last object। And the structure of negative, first subject helping verb, second form change into first form and plus object। So beta, today our topic, our lesson have finished। So tomorrow I will meet you again। Thank you so much।